امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی زبردست ہوں گے. آپ کو بہت ساری برکت ہے. چند چہرے ایسے ہیں جو کافی دیر کے بعد میں دیکھ رہا ہوں. سو میں ان بہن بھائیوں کو اور جو روٹین کے ساتھ آتے ہیں سنڈے سروس میں ایک بار پھر آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اور دعا دو کہ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور آپ کے خاندان ہمیشہ خدا کی پناہ میں رہے اور آپ کے گھرانے کی، اپنے بچوں کی اور خاندانی سب ضروریات جو ہے خدا آسمان کھول کر پورا کرتا رہے. سب زندہ خدا کے لیے زوردار تالی بجائیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ کو بتا سکتا ہے، ہاتھ کھڑا کرے گا کہ لاسٹ سنڈے ہم نے کون سی عبادت کو سیلیبریٹ کیا ہے، منایا ہے؟ جی آپ سبھی بہت اچھے ہیں اور آپ نے سب نے غلط جواب دیا ہے. میں نے کہا تھا کہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں، لیکن آپ نے جواب دیا ہے. تو یہ آپ کا جو ہے آنسر ہے ٹھیک، لیکن میں نے جو کہا تھا آپ نے وہ آنسر پورا نہیں دیا. میں نے کہا تھا کہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں، تو آپ نے سب نے کیا کہا؟ عید پینتیکوست. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم نے عید پینتیکوست کو یعنی کہ عید کو منایا ہے، لیکن میں نے پوچھا تھا کہ جس کو پتہ ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے. ہاں جی، آپ کسی کو پتہ ہے ہم نے لاسٹ سنڈے کون سی عید کو سیلیبریٹ کیا ہے؟ جشن کے ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے عبادت کی. ہاں جی، کسی کو یاد ہے؟ چند ہاتھ ہیں جو کھڑے ہو. جی دیکھا، ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم نے کون سی عید منائی ہے. تو اس لیے میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ کتنے بہن بھائی ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ لاسٹ سنڈے ہم نے کون سی عبادت کی ہے اور کون سی عید کو سیلیبریٹ کیا ہے. تو لاسٹ سنڈے ہم نے عید پینتیکوست کی عید کو منایا ہے، جس میں آپ لوگوں کے تعاون سے یہ عبادت بہت زبردست رہی، برکت رہی اور خدا نے ہم سب کو برکت دی. ہاللیلویا. تو آئیے آج صبح ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب. اور آج ہم خدا کے کلام میں سے اپنی قوت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام جس کا ابھی ہم تلاوت کرنے کو ہے، میں چاہتا ہوں کہ کون خوبصورتی کے ساتھ اس چیپٹر کو پڑھ سکتا ہے. 1 سے لے کر ہم پڑھیں گے 1 سے 4 آیات. یہ ہم 4 جو ورسز ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اسی ورسز کے اندر خدا آپ کو بہت برکت دینے والا ہے. سو کون پڑھ سکتا ہے؟ جی، باجی نازیہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. میں چاہوں گا کہ باجی نازیہ سامنے آئے اور خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے اور ہم سبھی بڑی عزت احترام کے ساتھ خدا کے کلام کی تلاوت کو سنیں گے اور سب ہم باجی کے ساتھ مل کر آمین بھی بولیں گے. اعمال کی کتاب اس کا 9 باب اس کی پہلی 4 آیات. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی. آمین. سب بولے آمین. سب بولے آمین. یاد رکھیے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے سامنے ایک گول ہے یا آپ کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو خدا کی حضوری میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے. یہ عید کا دن تھا. بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے لاسٹ سنڈے کو سنا ہے.
لیکن آج میں جس طرح سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو خدا کے قدموں میں جھکنے کی ضرورت ہے. اس عید سے پہلے یہ لوگ جو 120 لوگوں کی جماعت ہے، اس میں یسوع مسیح کی ماں مریم بھی ہے، جو 120 لوگوں کی جماعت ہے. اور بائبل ہمیں فرماتی ہے کہ جس دن عید پینتیکوست کا جو دن تھا، جس دن روح القدس نازل ہوا، یہ لوگ 10 دن سے ایک جگہ پر کیا تھے؟ جمع تھے. کنٹینیو 10 دن ایک جگہ پر یہ بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، رفاقت میں ہے، ایک جان ہے. اور جب تک وہ لوگ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے، وہ فیملی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ چرچ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ ایک مقصد کے لیے ایک نیت، ایک ارادہ، ایک سوچ نہیں ہو جاتے. آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے، آپ کی فیملی کبھی بھی آگے نہیں جا سکتی، آپ کا چرچ، آپ کی کلیسیا کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک پاسٹر، کلیسیا، لوگ، جماعت ایک جان ہو کر اور ایک تن ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ کر دعا نہیں کرتے. آسمان کبھی نہیں کھلتا آپ کے لیے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 دن ہو چکے ہیں ان کو، اور یہ 10 دن سے کیا مان رہے ہیں کہ ہمیں روح القدس کا بپتسمہ ہو جائے، ہمیں روح القدس مل جائے. اور ان تمام لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے پرامس کیا ہے اور کہا ہوا ہے کہ جب تک تمہیں روح القدس کا لباس مین کے روح القدس سے دلیری نہ مل جائے، روح القدس سے آپ مور نہ ہو جائے، آپ نے اسی جگہ پر کیا رہنا ہے؟ ٹھہرے رہنا ہے. اور یہ 10 دن سے مانگ رہے ہیں، یہ 10 دن سے دعا کر رہے ہیں، یہ 10 دن اکٹھے ہیں. یہ اپنے گھروں کو نہیں جا رہے، یہ کاروبار پر نہیں جا رہے، یہ بلکہ ایک تن ہو کر خدا کی حضوری میں دعا کر رہے ہیں، خدا سے قوت مانگ رہے ہیں، خدا کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کے مسا کو مانگ رہے ہیں، خدا کی وفاداری ان کے ساتھ ہے. لیکن جب عید پینتیکوست کا دن آیا، اس دن کیا ہوتا ہے جیسے ابھی ہمیں پڑھا ہے؟ کیا ہوا؟ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عید پینتیکوست کے والے دن جب روح آیا تو کیا کیا کام ہوئے. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ جب روح القدس آیا تو کیا کیا کام ہوئے. پہلی بات کہ جب یہ ایک تن ہو کر دعا کر رہے تھے تو کلام کہتا ہے کہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سب سے پہلے ان کے لیے کھل گیا. سب سے پہلے کیا ہوا؟ سب بولے ہاللویا. جب یہ مل کر دعا کر رہے تھے، جب یہ ایک تن تھے تو کلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے ان کے لیے آسمان کھل گیا. جب آپ لوگ دعا کرتے ہیں کیا آپ کے لیے آسمان کھلتا ہے؟ کیا آپ کی آواز خدا تک پہنچتی ہے؟ کیا آپ اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ خدا کا روح آپ کے درمیان آ کر نازل ہو اور وہ آپ کو قوت دے، وہ آپ کو زور دے؟ نہیں. لیکن یہاں پر ایسا ہوا ہے کہ یہ ایک تن ہو کر دعا کر رہے ہیں اور لکھا گیا آسمان کھل گیا اور ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، جیسے کوئی طوفان آ گیا ہے، جیسے کوئی آندھی آ گئی ہے. اور وہ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، لکھا کہ وہ سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. ہاللویا. سب بولے ہاللویا. جہاں وہ بیٹھے تھے، یاد رکھیے جب آسمان کھلے گا تو آپ کے دائیں بائیں سے آندھی چلے گی، روح کی آواز چلے گی، روح کا طوفان آئے گا، روح کی آگ آئے گی، پاک روح کی آگ آئے گی. اور جہاں تم لوگ بیٹھے ہوں گے وہ ساری جگہ آپ کی آواز سے، روح القدس کے زور سے گونج اٹھے گی اور آپ کی آواز صدا ہوگی. اور پھر لکھا ہے اور انہیں آگ کے شعلہ سی بڑھتی ہوئی زبانیں دکھائی دی گئی. پہلی بات
याद रखिएगा कि रूह कुद्दस जब आता है तो वो आपको कैसे संभाले देता है, जिस तरह से रूह आपको ताकत देता है। और ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास कैद जुबान है उसी को रूह कुद्दस मिला है, ये रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है। ये एक स्टैम्प की गई है, एक मोहर है कि इसके पास कैद जुबान है और ये रूह कुद्दस का फल है जो इसको दिया गया है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जिनको गैर ज़बानी नहीं आती उनके पास रूह कुद्दस नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये तमाम के तमाम लोग 120 की जमात जो है यहाँ गैर ज़बानों में दुआ करना शुरू हो गई। और इस ईद पर सारी दुनिया के लोग आए हुए हैं, सारी दुनिया के ज़बाने बोलने वाले लोग इस ईद में शामिल हैं। और जब ये आवाज गूंज उठी, जब इन्होंने अपनी आवाज की सदा को बुलंद किया, तो कलाम कहता है कि सारे इर्द गिर्द में क्या होना शुरू हो गया, हलचल मच गई, शोर मच गया कि ये 120 की जमात जो है ये क्या कर रही है। याद रखिए, जब तू रूहानी तौर से या जिस्मानी तौर से तरक्की करेगा तो लोग तेरे आगे पीछे दाएं बाएं इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे तेरी तरक्की को रोकने के लिए, तुझे आगे बढ़ने के लिए। वो तुझ पर उंगलियां उठाएंगे। और ऐसा लिखा है कि ये सारे लोग इकट्ठे हुए और आकर बोलने लगे और क्या कहने लगे, इन्होंने तो पी दी हुई है। क्या कहने लगे, ये कोई मैच के नशे में है, इन्होंने कोई शराब पी हुई है, ये दीवाने हो गए हैं, ये क्या हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं। लेकिन जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ तो कलाम कहता है कि पतरस उन 11 में से खड़ा हो गया। पतरस क्या हो गया, पतरस क्या हुआ, मैं उस पतरस की बात कर रहा हूं जिसको जब यीशु मसीह को पकड़ा गया और उसको एक औरत आकर कहती तू भी उनके साथ था, तो उस पतरस ने क्या कहा, नहीं मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, मैं इसको जानता हूं। फिर एक और बंदा आया, फिर एक और कितनी बार उसने इनकार किया, सब बोले कितनी बार, मैं उस पतरस की बात कर रहा हूं जिसने यीशु मसीह का इनकार किया। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ, वही इनकारी पतरस जो है वो 11 में से 120 की जमात में से खड़ा हुआ और दिलेरी के साथ बोलने लगा और उनसे कलाम करने लगा। हालेलुया। एक बात याद रखिएगा, अगर 119 की जमात पतरस के बैकअप ना करती, इस बात को गौर से सुनिए, पतरस सामने खड़ा हुआ है, पीछे 119 की जमात है, पावर पुश किया जा रहा है। सुनिए इस बात को, वो अपने लीडर को पुश कर रही है। पतरस सेंटर में खड़ा है और दुनिया के सामने खड़ा है और दुनिया से कलाम करने लगा है दिलेरी के साथ। लेकिन उसकी बैक में क्या है, पावर है। 119 की जमात जो है वो पतरस के पीछे खड़ी है और पतरस के लिए दुआ कर रही है, उसको कुव्वत मिल रही है, उसको दिलेरी मिल रही है और पतरस शेरों की तरह कलाम कर रहा है। हालेलुया। आज दोस्तों, भाइयों, कलीसिया सुन लीजिए, जब आपका लीडर कलाम करे, जब आपका लीडर किसी जगह पर मनाने के लिए जाए तो कलीसिया को चाहिए क्या करना चाहिए, बैकअप करना चाहिए अपने लीडर का। 119 की जमात पतरस के पीछे खड़ी हुई है और ये वही जमात है जो पहले डरे हुए थे। ये वही पतरस है जो अपनी जान को बचाने के लिए 3 बार इनकार कर चुका है। लेकिन यहाँ पर पतरस ने खड़े होकर कलाम किया और जब कलाम किया तो बाइबल कहती है उनके दिलों पर क्या लगी, सब बोले उनके दिलों पर क्या लगी। पहली बात, रूह कुद्दस का कुदरत वाला जो कलाम था, जो उसकी पावर थी, उसने पतरस को दिलेरी दी और जब उसको दिलेरी मिली तो फिर वो पब्लिक के साथ, उन लोगों के साथ कलाम करता है जो ये कह रहे थे कि ये कोई ताजा नशे के, मैं के नशे में है,
इन्होंने कोई ताजा न्याय पी है। लेकिन जब पतरस ने कलाम किया तो बाइबल फरमाती है 3000 लोगों ने उसी वक्त चलाए रोए अपनी गलतियों का गुनाहों का इकरार किया और कहा कि बताओ हम क्या करें कि आप भी रूह कुद्दस पाए। और पतरस ने क्या कहा, तौबा करो और बपतिस्मा लो तो रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। मैं उस पतरस की बात कर रहा हूं जो डर था। आज भी बहुत सारे बेटे बेटियां चर्च के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अपनी जान को बचाना चाहते हैं। लेकिन जब रूह कुद्दस आया उनको ताकत मिली, कुव्वत मिली, वो जोर से बन गए, दिलेरी से बन गए, खुदा का कलाम के जो मुकाशफे थे। शायद पतरस ने पहले पढ़े हो या ना पढ़े हो, इस बात को भी सुनिएगा। पतरस ने पहले पता नहीं खुदा का कलाम सुना हो या नहीं, लेकिन जब कुदरत आई, जोर आया, मुकाशफे आने शुरू हो गए, सहीफे खुल गए, पतरस योएल नबी के हवाले देने लगा। कुदरत का जो कलाम है, जो आसमानी कलाम है, आसमान से आया और पतरस ने कहा कि ऐ गलीलियों, ऐ यहूदियों, ऐ लोगों सुन लो, हम उस यीशु की मनाती करते हैं जिसको तुम्हारे बुजुर्गों ने क्या कर दिया है, मसलूब किया है, वो जी उठा है। ये दलेरी के साथ मनाती कर रहा है। पहले तो नहीं कलाम आता था पतरस को, और कहता है पतरस ये योएल नबी का सहीफा है, ये पेशेंट वही है जो कलाम पहले लिखा गया था, वो आज पूरा हो रहा है। हालेलुया। कि तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत बूढ़े ख्वाब देखेंगे। पतरस को पहले कलाम तो नहीं आता था, लेकिन अब आ रहा है, क्योंकि अब उनके लिए क्या खुल गया है, आसमान खुल गया है। अब उसको कुव्वत मिल गई है, अब उसको दलेरी मिल गई है। और कलाम कहता है कि उसी रोज पहली कन्वेंशन पर, पहली इबादत पर 3000 लोगों ने तौबा की। लफ्ज क्या लिखा है कि उनके दिलों पर क्या लगी। आज हमने अपने दिल बहुत सख्त कर दिए हैं। जितना मर्जी कलाम सुनाएं, जितना मर्जी हम चलाएं, जितना मर्जी आपके लिए दवाई लें, लेकिन आपके दिल टूटते ही पत्थर बन चुके हैं। लेकिन खुदा का कलाम तब्दील करने की कुदरत रखता है, आपको हौसला देने की कुदरत रखता है। और पतरस ने कलाम किया और 3000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया और बपतिस्मा लिया। और आगे हम बढ़ते हैं, आगे इस ईदों में नहीं आना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ शरीयत के अंदर, पुराने अहदनामे के अंदर बहुत सारी ईदें थी। क्यों? खुदा चाहता था कि मेरे लोग ईद करें। ईद का मतलब क्या है? खुशी मनाना, शादमान होना। खुदा ने अपने लोगों को बहुत सारी ईदें दी कि मेरे लोग हर ईद को खुशी से मनाए, शादमान हो, मेरी प्रस्तिश करे, मेरे घर में आए, इसलिए ये ईदें मनाई जाती थी। और पतरस ने भी फसह की ईद को मनाया। पतरस ने क्या किया? पतरस ने 3000 की कटाई की। यीशु मसीह का वो बंदा पतरस जो इनकारी था, अब वो भी कटाई कर रहा है। उसने पहली कन्वेंशन पर कटाई की, फसल की कटाई की, और वो 3000 उसको फल मिल गया। 3000 लोग बच गए पतरस के कलाम सुनाने के सबब से। हालेलुया। और जब यीशु मसीह 50वें दिन 40 दिन के बाद 40 दिन के बाद आसमान पर गया, तो 50वें दिन SMS आया, पैगाम आया। SMS मैसेज समझते हैं ना? आसमान पर यीशु चला गया। ईदे पेंटिकोस्ट के दिन मैसेज आया रूह कुद्दस की सूरत में, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? मददगार भेजूंगा। और मैसेज क्या आया है कि भाई मैं पहुंच गया हूं, मैं बाप की दाहिनी तरफ बैठ गया हूं, सही सलामत पहुंच गया हूं। और अब मैं अपने उस वादे को जो मैंने प्रॉमिस किया था जमीन पर रहते हुए तुम लोगों के साथ, कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, मैं सलामती से पहुंच गया हूं। और अब मैं तुम्हें जोर देने लगा हूं, कुव्वत का लिबास पहनाने के लिए, रूह कुद्दस देने वाला
रहा हूँ, पैगाम आया 50वें दिन, और वो किस स्वरूप में था कि सब के सब रूह कुदस से भर गए। हालेलुया, सब के सब रूह कुदस से भर गए। आज अफसोस की बात है, बहुत सारे चर्चों में रूह कुदस की मनादी नहीं की जाती जिस तरह करनी चाहिए। हालांकि ये बहुत जरूरी है। रूह कुदस के बगैर हम कुछ भी नहीं है। रूह कुदस हमारा मददगार है, हमारा हेल्पर है, दोस्त है। वो हमें लीड करता है, चलाता है, बढ़ाता, सिखाता है, वो उस्ताद है, वो सबसे जबरदस्त उत्तम टीचर है, हमारा सबसे आला टीचर है। जो बातें पतरस ने अपने भाइयों से, दोस्तों से, टीचरों से नहीं सीखी, वो रूह कुदस ने सिखाई। रूह कुदस उस पर नाज़िल हुआ और वो योएल नबी के सहीफे देने लगा। और फिर याद रखिए, जहां पर रूह कुदस नाज़िल होता है वो दुनिया का मरकज बन जाता है। समझिए इस बात को। मरकज क्या होता है? सेंटर की जगह। दुनिया के इर्द गिर्द के लोग आए हुए हैं, वो ईद को मना रहे हैं, ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जब रूह कुदस नाज़िल हुआ, सबकी तवज्जो पतरस उस जमात की तरफ लगी। याद रखिए, जब आप रूह कुदस से पड़े हुए कलाम सुनेंगे, गीत गाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, रूह कुदस आपके अंदर होगा, तो सब लोग तुझे देखेंगे और तू सबका मरकज बन जाएगा, सबकी आंखों का तारा बन जाएगा, तू दरमियानिया हो जाएगा, सबके बीच में आ जाएगा। ये है रूह कुदस की पावर। सबके सब लोग जो है, जितने भी लोग थे, वो सबके सब सिर्फ 120 की जमात को देखना चाहते थे क्या हो रहा है। याद रखिए, जब खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, आप आगे बढ़ेंगे, तो लोग आपको देखना चाहेंगे कैसे हो रहा है। ये तो पहले ऐसा नहीं था, ये तो बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, नकारा था, काम नहीं कर सकता था। अब तो बड़ा शेरों की तरह कलाम सुना रहे हैं, अब तो शेरों की तरह कलाम सुना रहे हैं, अब तो सामने आकर गीत भी गा रहे हैं, आपको ये सामने आकर कलाम सुना रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, चर्च का काम कर रहे हैं। ये कब होगा? जब रूह कुदस अंदर होगा। हालेलुया, जब रूह कुदस। अब मुझे एक चीज बताइए, हम किस तरह से रूह कुदस को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो उसकी प्रेजेंस यहाँ पर है। याद रखिए, मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, अभी भी यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, अभी भी रूह कुदस यहाँ पे मौजूद है और वो आपको छू रहा है। वो आपकी जिंदगियों के अंदर आना चाहता है, वो आपके दिलों पर चोट लगाना चाहता है, वो चाहता है कि आप टूट जाएं, बिखर जाएं। जिन लोगों को आपको तकलीफ दी है, वो चाहता है कि आप यीशु के पास आ जाएं, कदमों में आ जाएं, उसकी हजूरी में रोए, चीखे, कहे, ए भाई प्यारो, खुदा के खाको बताओ कि हम क्या करें, तौबा करें, निजात पाएं। और पतरस कहेगा, तौबा करो और अपने गुनाहों का इकरार करो। और आखिरी बात कर मैं इसको क्लोज करूंगा। रूह कुदस का एक और बड़ा काम इसी चैप्टर में लिखा हुआ है, लास्ट की आयतों पर। रूह कुदस ने जमात के अंदर ऐसा काम किया, ऐसी तब्दीली आई कि तमाम कलीसिया के लोग अपने घर बार बेचकर अपना मालो समाज कहाँ लाकर देने लगे। कहाँ? पहले नहीं हो रहा था, कोई अपनी जायदाद नहीं बेच रहा था, कोई अपना बिजनेस का जो भी कमाया हुआ पैसा जो कुछ था वो नहीं दे रहे थे। लेकिन रूह कुदस का ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, करिश्मा, मौजज़ा, कि तमाम लोग, बाइबल में लिखा, वो एक तन थे, एक सोच, एक ख्याल, सब एक थे। वो जो कुछ भी करते थे सबकी मुशावरत के साथ करते थे, कभी किसी ने अपनी मर्जी नहीं की थी, वो लीडर की सुनते थे। और वो लोग 120 की जमात अपनी जायदादें बेच कर अपना मालो समाज किसको देने लगे? रसूलों के कदमों में लाकर रखने लगे। ये सबसे जबरदस्त काम। अगर आज हम आप लोगों को बोले कि आप ऐसा काम करें कि चर्च को बनाने के लिए हम अपनी पूरी एफर्ट लगाएं, आपने लगाई भी है, नो डाउट आपने बहुत एफर्ट किया, लेकिन अभी भी कम है। काम इसलिए आज ये हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा काम कि लोग तब्दील हुए, लोगों ने तौबा की, बपतिस्मे लिए, और फिर वही लोग अपनी जायदादें ला लाकर रसूलों के
कदमों में रखने लगे। ताकि क्यों रखने लगे? बताइए जी, क्यों लोग ये काम कर रहे थे जी? रूह कुद्दस उनको गाइड कर रहा था जी। और मैं आपको बताऊंगा, वो लोग इसलिए अपना जायदादें बेच कर रसूलों के कदमों में रखने लगे ताकि मुनादी का काम जारी और सारी रहे, खिदमत का काम न रुके। याद रखिए, रुपए पैसे के बगैर भी खिदमत नहीं हो सकती। और खुदा काम कर रहा है, आप इतने बड़े प्रोग्राम करते हैं, पैसा लगता है, रुपया पैसा लगता है, बिल्डिंग खड़ी करनी है तो पैसा लगेगा। और ये 120 की जमात कर रही है। 3000 लोग जो यीशु मसीह को कबूल कर जिंदगी पा चुके हैं, वो अपने जायदादें बेच कर रसूलों के कदमों में हैकल में चर्च में ला रहे हैं कि चर्च बनाया जाए, क्रिश्चियन का काम हो, मनाती हो। अगर 3000 लोग बचे हैं तो और भी लोग बच जाएंगे। ऐसी चोट लगी कि वो अपना आप ही भूल गए, वो अपना, अच्छा यहाँ पे लिखा वो अपना, दूसरों का नहीं कि हम किसी का घर बेच कर ले आए या किसी को एडवाइस दे के तुम बेच, नो, ऐसा नहीं। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, अपना अपना सब कुछ बेच कर रसूलों के कदमों में ला रहे हैं ताकि चर्च तैयार हो, कलीसिया का काम हो, मनाती की जा सके और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। तो अगर आज सुबह खुदा के पाक कदम ने आपको छुआ तो आप अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। खुदा ने अगर आपसे बात की है, कलाम किया है, पवित्र आत्मा ने आपको टच किया है, छू लिया है, तो हम दुआ करना चाहते हैं ताकि खुदा आपको और ज्यादा बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। सभी जितने लोग चाहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए और रूह कुद्दस की नेमतें आ जाए, रूह कुद्दस का फल आपको मिले, तो फिर आपको उसके सामने करार करने की जरूरत है। जिस तरह 3000 लोगों ने आकर कहा कि हमें बताएं हम क्या करें कि रूह कुद्दस पाएं, इन्होंने दलेरी की। पूरी दुनिया के लोग थे वहां पर, पूरी दुनिया के लोग उस ईद में थे, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों के बीच में उनके सामने वो लोग सामने आए और अपने अपने मजहबों को छोड़कर यीशु मसीह को कबूल कर लिया। उन्होंने जान चुके थे कि वो जिंदा है और वो अपनी दुल्हन को, अपने लोगों को लेने के लिए फिर आएगा। प्रेज गॉड। सभी अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। हालेलुया। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। आपके अंदर, आपके बाजू को उठाने की जितनी भी ताकत है, पूरी ताकत लगा दीजिए और अपने हाथों को उठाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, बड़े की तारीफ हो। आप दुआ करना शुरू कीजिए। कलाम में लिखा कि वो इस कदर ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ एक आवाज होकर उन्होंने दुआ की और आसमान खुल गया। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप आसमान खुले ताकि आप लोग बरकत पाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आसमान खुल जाए, Oh,
तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने आसमान को खोल कर इन बच्चों को बरकत दी है। ये बरकत हमेशा उनके जीवन के अंदर बनी रहे। कुदरत वाले खुदा, ये आज का मैसेज इनकी जिंदगी में कर लोग जो अभी तक तुझसे दूर हैं, तेरे करीब तौबा करें, बपतिस्मा लें, ताकि रूह कुदस इनाम में पाए। यीशु के नाम से आमीन। सभी यीशु के जनाब के लिए जोरदार ताली दीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस।